So, after discussing the magnetic field at the center of the circular current loop, we are now going to discuss about the magnetic field on the axis of circular current loop. So, today's topic is magnetic field on the axis of a circular current loop. So, as you have to find the magnetic field, that means B, on the axis of circular current loop. So, what will be our concept map, or you can say the proceeding in this case? First of all, I will tell you the steps. Number one, as you want to find out, you have to find magnetic field. Okay, where? On the axis of the circular loop. So you should have a circular loop. Step second, figure, and you have to construct the figure. You have to construct the figure according to the given situation. So first of all, you should have a circular loop. Now along the axis, so once you are having a circular loop, then how you will put that one so that we can imagine the figure, or we can draw the figure on this paper. So you cannot put this circular loop horizontally. Why? Because this is the center of the circle. You can see O, and through the center of the circle you will get the axis whose direction is towards you and into the plane of this paper. So that you will see only a dot. That's why it should be a perpendicular. It should be perpendicular to the, you can say, perpendicular to the plane of paper. That means the situation will be like this, not horizontal, but you have to take as a vertical. Vertically you have to keep this circular loop. After putting this, now you can see this is the center, or you can say the axis. This is now the axis. So the approach should be like this. Then you have to find the magnetic field on the axis, either to this side or to this side. So you have to choose any point, suppose P point if you take here, at which you have to find the magnetic field. Okay, you can take this here also. Now once you have to find the magnetic field, then the third thing is that you should have the current, because you know the current only produces the magnetic field. Okay, therefore once you are having the current in the circular loop, so if you are taking the circular loop here, so direction of the current will be either this direction, or you can say for this loop the direction of the current is this direction. That means clockwise or anti-clockwise. So once you have given the current, then you have to choose the direction. After choosing the direction, or after considering the direction, we will proceed. Okay, so how to proceed for that? The fourth step is, you are having the current carrying conductor. Suppose you are having the current carrying conductor I, and you have to find the magnetic field at point P. Then
you are having Biot-Savart law. Biot-Savart law. That means you have to use this Biot-Savart law. So for Biot-Savart law, what you will use? That is current element dl. So once you will take here the current element dl, whose direction is toward the direction of the current, then you have to take the position vector. Suppose r is the position vector here, then you can write, and theta is the angle between dl and the position vector. Then you are having Biot-Savart law, that is dv is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. So this formula is there that you have to use, and then we will find this is the magnitude of the dv. Then next step will be about the direction of dv, so that we can take the value of the theta. Okay, so these are the steps involved. That means the main step involved for the proceeding of this to find the magnetic field on the axis of the circular current loop. So now we'll draw the figure and we'll find the, you can say, the derivation for this magnetic field on the axis of the circular current loop. What here we have discussed now, that is things, that are the things which is required, how to find the, or how to proceed to find the magnetic field. तो कभी भी ध्यान में रखना है बच्चों, जब भी आपको कोई चीज दी है और फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां पे हमको अप्रोच कैसा होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट फिगर हम देख लेते हैं, और डायरेक्ट फिगर देखने के बाद में हमको पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ आई कहाँ से. तो जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताई, उस स्टेप्स से अगर आप जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे मैं सर्कुलर लूप जो निकालता हूँ. So this is the circular loop, and this one is the axis. Okay, and I will take the direction that is in this direction. Now you see, this is the center C of the circular loop, and this loop you have kept vertical or perpendicular to the plane of the paper. Plane of the paper. So that you will get this axis. Okay, this is the axis. So circular loop is perpendicular to the plane of the paper. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सर्कुलर लूप या फिर चूड़ी जो है वो, या सर्कुलर रिंग जो होती है वो इस पेपर पर, अपने पेपर पे वर्टिकली रख दी, खड़ी कर दी ऐसे, तो ये हो गया एक्सिस. अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, आपको यूज करना है बायोट-सावर्ट लॉ. तो बायोट-सावर्ट लॉ के लिए मुझे डीएल लेना पड़ेगा. तो यहाँ मैंने डीएल लिया, और यहाँ पर भी मैं डीएल लेता हूँ. सो दिस विल बी अगेन डीएल, that is current element. Now see, when you have applied a Biot-Savart law, then you are having the position vector. That means suppose this is the point P at which you have to find out the direction of the magnetic field. So first of all, see, if you are having this current carrying conductor I, and at this point P, if you want to find the direction of the magnetic field, okay, so just you take the current element, or if you simply, if you want to find the direction of the magnetic field at this point B, then perpendicular distance from this current element is suppose R, then you know you are getting the concentric circle. Okay, concentric circle will be there, and the curling figure will give the direction of the magnetic field, and the direction of the magnetic field will be the perpendicular
in this direction. So that is into the plane of the paper. Here, into the plane of the paper, or you can show by cross mark also, like this, into the plane of the paper. So here now, when you will join this point P and DL, suppose point P here, P is the point. Now I want to find the direction of the magnetic field. Suppose this position vector is suppose here S. S is the position vector. तो यहाँ बच्चों, और ये है रेडियस आपका, ये बन गया आपका रेडियस। मैं ये से दिखाता हूँ, जनरली सर्कल में रेडियस r से दिखाते, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिया है, और r is nothing but the center from this, r is the distance of this point P from the center of the circle. Okay, you can use any one of the letter here, there is no problem, but the concept and the visualization is very important. How it is, see, अब यहाँ पे आपको क्या विजुलाइज करना है कि आपके पास एक रिंग है ना, एक रिंग आपने ऐसे आपके सामने खड़ी कर दी। ओके, थोड़ी बड़ी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और इस यहाँ पे अब रिंग आपके सामने खड़ी कर दी, मतलब क्या है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मान लीजिए अपनी जो भी टायर होता है ना, 4 व्हीलर का या ऐसा, उसको आपने, या फिर बड़ी वाली जो ब्लॉक कार्ड की रिंग होती है ना, वो यहाँ पे आपने ऐसे खड़ी कर दी, आपके सामने खड़ी कर दी। ओके, और आप इस साइड से खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर। ओके, योर पोजीशन इज लाइक दिस सपोज। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस पॉइंट पे एक स्टिक आपने रख दी, ऐसे स्ट्रेट वन स्टिक रख दी, और यहाँ पे ये एक्सिस। अब यहाँ से जो ये स्टिक है, ये सर्कल जो रहेगा आपको कैसे दिखाई देगा, मान लीजिए इतना अगर पोर्शन लेते हैं तो ये आपको रहेगा ऐसे दिखाई देगा, और ये स्टिक ऐसे दिखाई देगी, मतलब यहाँ पे एंगल कितना हुआ, 90, बराबर है। इसको विजुअलाइज करना है, इस पॉइंट को विजुअलाइज करना है यहाँ पे कि ये पॉइंट कैसा रखेगा, क्योंकि आपने इसको खड़ी कर दी है ना, यहाँ पे अगर खड़ी कर दिए तो ये ऐसा दिखाई देगा फ्रंट साइड से, और यहाँ से लकड़ी ऐसे कर दी तो ये आ गया आपका, इस पॉइंट से आएगा 90 डिग्री। तो ये आपको विजुअलाइज करना है, मतलब कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है, रिंग, बड़ी वाली रिंग अगर है, तो वहाँ टॉप पर आपने एक लकड़ी यहाँ पे रख दी, तो लकड़ी का इस पॉइंट से एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी आपने क्या किया, आपके सामने जो भी आपके फ्रंट में जो भी ये सर्कुलर पोर्शन है ना, यहाँ से इस स्ट्रेट लकड़ी को ऐसे नीचे नीचे करना शुरू कर दिया, ऐसे करना शुरू, तो यहाँ तक आ गए। तो मुझे बताइए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल, और यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला एंगल था, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए, सर्कुलर रिंग के ऊपर अगर आप बैठ गए है ना, सर्कुलर रिंग के ऊपर यहाँ पे बैठ गए, और यहाँ पे स्टिक पकड़िए, और इसको आप ऐसे नीचे कर रहे हो, तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ का एंगल नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, वहाँ का एंगल नहीं चेंज हो रहा है। एंगल कौन सा चेंज हो रहा है, एंगल यहाँ पे जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस के साथ जो एंगल है वो चेंज होगा, वो वाला एंगल चेंज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एंगल जो यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री फिक्स रहेगा, किसके साथ, ये जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है उसके साथ, लेकिन जब ये झुकती जाएगी तो ये रेडियस की तरफ बढ़ेगी, तो रेडियस की तरफ जो एंगल होगा वो एंगल चेंज होते जाएगा, और हमें रेडियस से एंगल नहीं लेना है, वी डोंट वांट टू टेक द एंगल विद द रेडियस, वी वांट टू टेक द एंगल विथ योर डीएल। यहाँ पे जो पोर्शन है, कर्व पोर्शन, उसके साथ जो एंगल था ये 90 डिग्री वाला,
वो लेना है। तो यहाँ जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा। और इसके साथ मतलब रेडियस के साथ एंगल जो रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। रेडियस के साथ एंगल अलग, लेकिन टॉप पोर्शन जो रहेगा डीएल, उसके साथ एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें कहाँ लगने वाला है, बायोट-सावर्ट लॉ में जो लगने वाला है, dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो थीटा है वो मेरा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके साथ होता है, थीटा होता है dl एंड पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर है s, ये dl हो गया इसके साथ ही। सिमिलरली यहाँ पे जो dl है, इसका डायरेक्शन है, इसका भी एंगल इसके साथ जो रहेगा वो एंगल कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री, वो भी कितना होगा 90 डिग्री। मतलब टॉप और बॉटम, यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम, कि बायोट-सावर्ट लॉ में हमने जो यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, बायोट-सावर्ट लॉ में हमने जो टर्म्स लिखे हैं, वो जो टर्म्स है, देखिए ये dl, तो हमने करंट एलिमेंट ले लिया। r कौन सा था, तो r पोजीशन वेक्टर था। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर s है, तो फॉर्मूले में यहाँ ये r की जगह s हो जाएगा। थीटा तो वही रहेगा जो dl और पोजीशन वेक्टर इनके बीच में रहता है, dl और पोजीशन वेक्टर के बीच में रहेगा, वो तो थीटा हमने 90 डिग्री अभी यहाँ पे आपको पता चल गया। रेडियस, ये रेडियस नहीं था, ये था पोजीशन वेक्टर dl और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो भी डिस्टेंस था वो, तो यहाँ पे ही s है। अब मुझे अगर यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना है, if I want to use the बायोट-सावर्ट लॉ here in this figure, so how can I write that one? So I can write dB is equal to mu 0/4 pi IDL sin theta upon s square. See here s square. Why? Because your position vector is s. So ये यहाँ पे फॉर्मूला आ गया जो मुझे यूज करना है। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl and s, which is here equal to 90 degree. So ultimately this theta will become 90. तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई IDL अपॉन एस स्क्वायर। समझ में आया बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ओके, तो ये हमने dB के लिए मिला लिया। अब ये आया इस dl का dB का मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन मुझे अभी भी क्या कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है, मुझे अभी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ dB। अब देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ dB कैसे होगी। अब इस फिगर की तरफ आइएगा, अगर आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर किसको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर को ये मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये है पोजीशन वेक्टर, है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसको परपेंडिकुलर अगर आपको दिखानी है तो इसको परपेंडिकुलर दिखाने को आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको यहाँ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आया परपेंडिकुलर dB। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे परपेंडिकुलर दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं dB। ये गलत है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसको नहीं है, इस पोजीशन वेक्टर को परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी।
इसको यही परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्शन जो होती है ये क्यों नहीं है, ये कैसे आ गई। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, डायरेक्शन जो होती है वो पोजीशन वेक्टर या पोजीशन जो होती है पॉइंट की उसको परपेंडिकुलर होती है। तो इस हिसाब से यहाँ से आपने परपेंडिकुलर अगर इसको दिखाना है तो ये आ गया था डीवी। अब आगे बढ़ते हैं, पोजीशन यहाँ पे डीबी की मिल गई। अब डीबी क्या है, तो ये डीएल की वजह से है। ओके, अब इस डीएल की वजह से देखो तो नीचे वाला डीएल से, ये जो बॉटम वाला है, बॉटम वाला डीएल जो है उसके हिसाब से अब देखो इसको परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ये आ गया परपेंडिकुलर, ये हो गया डीबी। तो ये डीबी इसकी वजह से और ये डीबी इसकी वजह से, ये दोनों डीबी तो मिल गए। अब अपनी बात आगे बढ़ती है कि ये डीबी अगर दोनों की वजह से मिली है, दिस इज द डीबी ड्यू टू दिस टॉप करंट एलिमेंट डीएल and this dB is due to the bottom current element DL. Now what about the remaining DL? अब यहाँ पे जितने भी बाकी DL बचे हैं, ये सभी जितने भी DL है, सभी जो सर्कल के सरकमफेरेंस को हम बोल सकते हैं कि इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जितने भी DL होंगे उनका DB कैसे दिखाएंगे। तो इनका DB दिखाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, उसका DB कैसे दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, देखो यहाँ पे ये है आपका सर्कुलर पोर्शन है ना। मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर इस सर्कल को खड़ा कर दिया, जैसे आप निशानेबाजी में देखते हैं है ना, वैसे यहाँ पे खड़ा कर दिया और यहाँ पर आपको हिट करना है। तो ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस पर आप यहाँ खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंट की तरफ अम्ब्रेला जो होती है ना वो पकड़ना है। और अम्ब्रेला पकड़ने के लिए आप थोड़ा इस पॉइंट पे जो खड़े और यहाँ पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ पर जब आप इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ते हैं, छाता पकड़ते हैं है ना, और उसको खोल देते हैं, छाते को खोल देते हैं, यू आर ओपनिंग the umbrella in this direction whose tip is toward the center। तो आपको सभी जो उसके स्पोक्स है ना, वो कैसे दिखाई देंगे, ऐसे आएंगे है ना। आप ये इसको इमेजिन करो, थोड़ा सा इस फिगर को इमेजिन करो। तो ये हो गया आपका अम्ब्रेला का पोर्शन जो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो डीबी है, ये सब डीबी जो है ऐसे पार्ट में आ जाएंगे यहाँ पे है ना, ऐसे दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं रहेगा, ये सभी जो है ऐसे सर्कुलर, ऐसा इस पोर्शन में आपको सभी दिखाई देंगे। अगर मैं साइड से, इस साइड से अगर देखता हूँ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, इस साइड से सभी मुझे ऐसे दिखाई देंगे और ये अम्ब्रेला यहाँ पे रहेगी। आई बात समझ में। इसके पीछे बाकी जो है वो और नीचे वाले इसके पीछे रहेंगे। यही यहाँ पे है, इस डिब्बी के पीछे पूरे डिब्बी है और इस डीबी के नीचे ये बॉटम वाले यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे डीबी हो जाएंगे। ऐसा समझ में बात। तो ये हो गया उसका विजुअलाइजेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि इस डीबी के जो कंपोनेंट्स है उसको निकालते हैं। मान लीजिएगा कि इस डीबी को मुझे अगर रिजॉल्व करना है तो मैं ऐसे रिजॉल्व करूंगा। तो ये एक आ गया इस डायरेक्शन में और ये एक आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे इस तक, यहाँ तक आएगा। जैसे हम इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ओके, ये तो एक्सिस है। अब यहाँ पे ये एंगल मैंने ले लिया फाइ, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस फाइ। तो ये एंगल कितना होगा, फाइ। वेरी सिंपल ज्योमेट्री आई एम यूजिंग हियर। तो ये हो गया फाइ, 90 माइनस फाइ, हो गया फाइ। सिमिलरली नीचे भी यहाँ पे अगर फाइ है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एंगल रहेगा इसके साथ ये भी रहेगा फाइ, क्योंकि ये 90 माइनस फाइ रहेगा, तो ये आ जाएगा फाइ। अब मुझे इसका ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट निकालना है। ये बनेगा
dB cos phi, और ये वाला बनेगा dB sin phi। सिमिलरली इसकी वजह से रहेगा, इसकी वजह से भी, इस dB की वजह से भी कंपोनेंट इधर होगा। ये जो रहेगा इस साइड का, ये इस साइड का जो रहेगा वो रहेगा dB cos phi, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा dB sin phi। ओके, मतलब जितने भी dB, ये जो जितने भी dB रहेंगे, ये नीचे वाले और ऊपर वाले, उनका इस एक्सिस के अलोंग जो रहेगा वो सबका dB sin phi, और जो परपेंडिकुलर रहेगा वो रहेगा dB cos phi। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो dB cos phi ऊपर वाला और dB cos phi नीचे वाला, उनकी डायरेक्शंस कैसे हैं? दे आर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर दे विल कैंसिल विथ ईच अदर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपस में कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये जो dB sin phi है, ये dB sin phi, दे विल बी एडेड, दे विल बी एडेड, है समझ में? तो ऐड होने वाले कौन से हैं? ऐड होने वाले हैं dB sin phi ऑफ अबाउट ऑल द DL एलिमेंट। जितने भी DL यहाँ पे हमने सर्कुलर पोर्शन पे लिए हैं, उनके जितने भी dB यहाँ पे आए हैं, उनका dB sin phi जो रहेगा वो अलॉन्ग द एक्सिस रहेगा, और उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। दे विल गेट एडेड बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। व्हाइल dB cos phi ड्यू टू ऑल दिस एलिमेंट्स विल बी गेट कैंसल बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यू कैन से। तो ये भी चीज यहाँ पे हमने देख ली। मतलब अभी हमें ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई जितने भी हमने यहाँ पे dB को रिजॉल्व किया, वो कंपोनेंट कैंसिल होने वाले कौन से और ऐड होने वाले कौन से? तो कैंसिल होने वाले हैं dB cos phi, they will get cancelled, एंड जो dB sin phi रहेंगे जो along the axis, along the axis they will get added, ये ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं जो फॉर्मूला है अपना dB इज इक्वल टू, ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसका मैं अभी यहाँ पे यूज करता हूँ। ये dB जो है ये ड्यू टू करंट, सिंगल करंट एलिमेंट था। अब मुझे पूरे सर्कल के ऊपर अगर पूरे DL के लिए लेना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इंटीग्रेशन लेता हूँ और यहाँ पे अब प्रूफ करता हूँ। ओके, सो नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द प्रूफ और द डेरिवेशन फॉर दिस द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of the circular loop. Okay, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, the total magnetic field, the total magnetic field at point P in the direction of this CP, या आप मतलब इसको सेंटर करिए और ये P along CP in the direction of CP, या उसको आप बोल सकते हैं along the axis भी बोल सकते हैं, है ना? दैट इज B, आपको इसको इंटीग्रेट लेना पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। ये जितने भी साइन फाई हैं सबकी सब DL एलिमेंट की वजह से उनका टोटल इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो DL का dB पूरा इंटीग्रेशन लेने के बाद में हमको मिलेगा द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। अब देखिए साइन फाई निकाल दीजिए, व्हाट इज साइन फाई? साइन फाई इज इक्वल टू A अपॉन दिस, यू कैन से S, एंड व्हाट अबाउट dB? dB तो अभी हमने यहाँ पे निकाला, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई R dl अपॉन S स्क्वेयर, ये हमने निकाला हुआ है। इन दोनों का यूज हम इस इक्वेशन में कर देंगे। सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I dl upon s square into what is sin phi, that is a by s. So ultimately I'll get b is equal to integration of mu 0 upon 4 pi I into a into dl upon s cube. So I will take out the constant term, that is mu 0 I a upon 4 pi into s cube integration of dl. सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? सभी डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल you will get 2 pi a. What is circumference here? 2 pi a, because you have considered radius as a. So b is equal to mu 0 I a upon 4 pi s cube into 2 pi a. So I can write here, this pi will get cancelled, this again this 2 will get here. So b is equal to mu 0 I a square upon twice s cube. ये हमें डेरिवेशन यहाँ पे मिला. So this is nothing but here you can see the magnetic field at the axis of the circular loop on the at point P, you can see. Now here this s cube also you can write. You can calculate the value of this s by using the Pythagoras theorem. So ultimately you will get s is equal to square root of s r square plus a square, or you can write s is equal to r square plus a square raised to 1/2. So put here this value, yes. So this 3 will be multiplied this 1/2, so it will become 3 by 2. So I can write this equation. This equation will become b is equal to mu 0 I a square upon 2 into bracket r square plus a square raised to 3 by 2. How this 3 by 2 is here? Because this 3 into this 1/2, you will get here 3 into 1/2, you will get here 3 by 2. So finally you have got this equation. Now this is one for when you are using here the single term. This is for single term. If you are taking here number of turns n, if n is the number of turns, then that means if this coil is having n number of turns, then I can write here b is equal to mu 0 n I a square upon twice r square plus a square raised to 3 by 2. This is your final expression for the magnetic field at the center of the circular loop. तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि फिगर कैसे बनानी है. फिगर बनाने के बाद में जो हमें फॉर्मूला यूज करना है या जो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें जो भी नोन चीज रहती है, नोन थिंग्स, इसमें हमको लाना है. अभी यहाँ देखिए आपको क्या दिया था, सर्कुलर लूप दिया था. इस सर्कुलर लूप में क्या है दिया था आपको, यहाँ पे दिया था रेडियस मतलब ए दिया था, फिर आपने करंट लिया था, करंट की डायरेक्शन वगैरह, ओके, मतलब करंट है ये है. उसके बाद में यहाँ से जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट लेना था, ये डिस्टेंस आपने आर लिया तो आपके पास आर भी था. फिर आपने एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लेना है तो आपके पास एन भी था. तो आपके पास 4 क्वांटिटीज थी. यहाँ पे एन हो गया, आई हो गया, ए हो गया और आर हो गया. देखिए फाइनल फॉर्मूला हमने जो भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, बायो-सावर्ट लॉ यूज किया, डायरेक्शंस वगैरह दिखाई, और उसके बाद में हमने अलग अलग जो साइन फाई वगैरह थे, डी भी थे, उसकी वैल्यू हमने यूज किया, और उसके बाद में फाइनली फॉर्मूला किस फॉर्म में लाया, तो जो भी हमारे पास नोन थिंग्स थी, जो भी दी हुई चीजें थी, उस फॉर्म में हमने इसको लाया हुआ है. तो कभी भी ध्यान में रखिए
whenever you want to prove any equation, then first of all you have to focus on what are the given things, and on the basis of only that given things should appear in the final formula. Like this, here we have appeared that number of turns, current, then you can say the radius of circle A, then r is the distance, r is the distance from the center. यस नहीं दिया हुआ था आपको, ध्यान देखिए यहाँ पे यस नहीं आएगा, क्योंकि यस तो पोजीशन वेक्टर वगैरह होती है जो हम वहाँ पे बायोट-सॉर्ट लॉ में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला अपने फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। व्हाट आर द स्पेशल केसेस यू हैव टू कंसिडर इन दिस थिंग? सो once again you go through all these steps and finally focus on this formula, and now I am using the special cases. अभी हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ कि स्पेशल केस जहाँ वहाँ पे आती है जहाँ हम कौन सी चीज़ें यहाँ पे मानते हैं, वेरिएबल जो होती है उसको, कई बार जो हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूले, लास्ट फॉर्मूला जो है वहाँ पे तो कुछ थीटा दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पेशल केसेस, फर्स्ट वन, पहली स्पेशल केस क्या है? एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ द लूप में ये जो पॉइंट है यहाँ कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। अगर यहाँ जाता है तो ये r कितना होगा? इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0। अगर r इज इक्वल टू 0 है तो भाई जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है b इज इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस r स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर रेज टू 3/2। ये r इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, सो यू विल गेट हियर b इज इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वेयर अपॉन 2 a स्क्वेयर रेज टू 3/2। ये 2 विल गेट कैंसल और ये आएगा आपका a क्यूब, तो a क्यूब से ये a स्क्वेयर भी निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा म्यू 0 n i अपॉन 2a। ये आया आपका b इज इक्वल टू म्यू 0 n i अपॉन 2a एट द सेंटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस से कन्वर्ट, यहाँ पे आप उसको आप एरिया के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए एरिया ऑफ द लूप क्या होगा? पाई स्क्वायर, क्योंकि ये आपने रेडियस मान लिया है। अगर आपको एरिया के फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय ए, सो बी विल गेट हियर म्यू 0 n i इंटू दिस ए अपॉन 2 इंटू ए इंटू पाई ए स्क्वेयर, है ना। ये भी तो ए है, तो आपको मिलेगा म्यू 0 n i a अपॉन 2 पाई ए क्यूब। ये अनदर फॉर्म आया जो आपने एरिया के फॉर्म में लाया। ओके, सो दिस इज द अनदर फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर केस। नाउ द second case here, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास थीटा नहीं था, लेकिन थीटा नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप दूसरी जो चीज़ है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, उसमें भी आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। देखिए यहाँ पे आपने रेडियस r इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो आपको अलग केस मिल गई कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो ये आ गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये एक फार्मूला आ गया या तो फिर एक फार्मूला आ गया। ठीक है। सेकंड केस में क्या लेते हैं? एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट lying far away from the coil। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि B at an axial point, no doubt it's on the axial point, lying far away का मतलब क्या हुआ? R is very very greater than A, मतलब जो रेडियस हमने कंसिडर की उससे ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है r, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये बहुत बड़ा है। अगर ये बहुत ज्यादा ले लिया तो इसको हम ए को क्या करेंगे?
निगलेक्ट करेंगे, एक को निगलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया फिर, तो फॉर्मूला हमारा आ गया b इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपना ये वाला, म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेस टू 3/2। ये अभी यहाँ पे अगर आर बहुत बड़ा है तो ये जो ये है आर अगर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे ए को निगलेक्ट कर दीजिए, है ना। तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू दिस आर स्क्वेयर रेस टू 3/2। तो ये 2 कैंसिल, यू गेट हियर आर क्यूब। अब कुछ बच्चे पूछते कि सर आप यहाँ पे अगर ये बहुत बड़ा है आर से उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे इसको भी निगलेक्ट कर दो, ये भी तो ये है। अरे भाई इसको ए को निगलेक्ट कर दिया तो यहाँ ये जो रहेगा तो ना रहेगा सर्कल, यहाँ पे सर्कुलर रूप ही नहीं रहेगा। ये कंडीशन सिर्फ इसको अप्लाई करनी है, इसको मतलब लगाइए, नहीं तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे सर्कुलर लूप ही नहीं है, ये बात हो जाएगी। इसलिए ये जो है ये तो ये कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस वन एंड डिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो रेडियस से बहुत ज़्यादा है ये, तो उस वक्त इस ब्रैकेट के बारे में सोचना है आपको सिर्फ। ओके, सो दिस बिकम्स द इक्वेशन, ये आपका बना इक्वेशन। द फील्ड इज हियर, द फील्ड इज डायरेक्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एंड फॉल्स ऑफ एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये आ गया आपका क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट लूप। ओके, ये इनवर्स रिलेशन है। थर्ड केस है ये। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस में आपको लेना है, यहाँ यहीं पे मैं थर्ड केस लिखता हूँ। सो द थर्ड केस विल बी at an axial point at a distance, same case at an axial point at a distance where r is equal to a, where r is equal to a। अब यहाँ पे हमको देखना है ये जो डिस्टेंस था r और ये इतने ही डिस्टेंस पे आपको ये जो डिस्टेंस था उतना ही ये डिस्टेंस है, यहाँ पे हमको सेम डिस्टेंस पे हमको अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो उस वक्त हम यहाँ पे r इज इक्वल टू ये पुट करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू, नाउ r इज इक्वल टू ए मीन्स a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेस टू 3/2। So b is equal to mu 0 n I a square upon 2 into this a square is 2a square. Okay, so 2a square raised to 3/2. So this 2 will get cancelled. So it will come, how it will come, 2 into this a square plus a square raised to 3/2. So 2a square. So ultimately you will get here 2 raised to 5/2 into a, है ना। ये आ गया आपका फॉर्मूला यहाँ पे। तो जब आप r इज इक्वल टू ये लेते हैं तो उस वक्त आपको क्या मिलेगा, उस वक्त आपको मिलेगा म्यू जीरो अपॉन 4, म्यू जीरो एन आई अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन 2 2 रेज टू 5/2 इंटू ए, दिस ए स्क्वेयर शुड नॉट बी हियर। अभी कैसे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वेयर अपॉन ये 2 इंटू 2a स्क्वेयर रेज टू 3/2। ओके, तो ये आएगा आपका a क्यूब अपॉन 2 इंटू ट्वाइस a क्यूब। तो a स्क्वेयर अपॉन ये आ गया आपका 2 इंटू 8a क्यूब। ठीक है, तो ये तो a स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सॉरी ये यहाँ पे 2/3/2 जो है ये 2/3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका 2 का भी है 2, लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा यहाँ पे ये गलत हो गया, इस चीज़ से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
देखिए ध्यान दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वेयर रेज टू 3/2। तो ये 3/2 जो ये दोनों का है, तो आई कैन राइट म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू 3/2 इंटू ए स्क्वेयर रेज टू 3/2। तो ये 2 विल गेट कैंसिल, है ना, और ये स्क्वेयर के साथ ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर हमने देखिए इस ब्रैकेट को लिखना है एक्स वाई रेस टू एन, अगर लिख रहा है तो एक्स रेस टू एन इंटू वाई रेस टू एन, दोनों को इसको हम एक्सपोनेंट लगाते हैं ना, सिम 3/2 दोनों को लगाना है। ये 2 रेस टू 3/2 और ए को भी 3/2, तो ये 2 कैंसिल और एक क्यूब, तो ए स्क्वेयर अपॉन ए क्यूब, तो सिंपली यू विल गेट 1 अपॉन ए। तो ये बच गया यहाँ पे, अभी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ अभी फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो रहेगा म्यू जीरो एन आई अपॉन, अब देखिए ये 2 इंटू 2 रेस टू 3/2 इंटू ए, अब यहाँ एक्सपोनेंट 1, तो ये आएगा आपका बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 रेस टू 5/2, क्योंकि ये आएगा 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2, 1/1। ओके, सो फाइनल एंड दिस ए विल बी एज इट इज। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया अभी, दिस फाइनल एक्सप्रेशन you got for the case third when the distance of observation is same as that of the radius। okay, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड ये हो गया आपकी थर्ड केस। तो तीनों में हमने देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट केसेस देखिए, r इज इक्वल टू 0। दूसरी केस हमने देखी कि भाई r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ये, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा है रेडियस से। और तीसरी केस हमने लिया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ द रेडियस। सो यू गॉट दैट रिलेशन। द फाइनल इक्वेशन आई कैन राइट नाउ, फाइनली हियर आई विल राइट ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट वन, तो पहला हमें मिला, पहली केस में मिला b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए अपॉन 2πa³, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो। सेकंड जो हमने लिखा वो हो गया आपका b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2r³, यहाँ पे। और तीसरी जो केस हमने लिखी वो हो गई ये वाली, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2⁵ इंटू ये तीनों हमने स्पेशल केसेस से यहाँ पे प्रूफ किया। तो बच्चों तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हुए केयरफुल रहना है, थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती अगर किसी चीज़ से हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई भी करना आना चाहिए। तो ये रेक्टिफाई करने के बाद में हमने ये चीज़ यहाँ पे ठीक से लिख दी अभी, है ना। कई बार ऐसे होता भी है कि बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वेयर को ही इसके साथ में कैंसिल करके, जैसे पहली बार हो चुका था वैसे करते, लेकिन ये 2 को नहीं छोड़ना है क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा अगर वैसे आप ए स्क्वेयर से ही अगर करते हैं तो। इसलिए 2 भी 3/2 और a स्क्वेयर 3/2 लेना है, ऐसे फॉर्म मिलाना है, उसके बाद में आपको फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स वी हैव रिटन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो थी वो स्टेप्स हमने लिखी पहले कि डायरेक्ट फिगर को देखने से पहले कि भाई फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करते आनी चाहिए, उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल होते हैं, some laws and some rules you have to use to formulate the figure। उसके बाद में हमने यहाँ पे बायर-सावर्ट लॉ मेन यूज किया, मतलब इसको हमने बायर-सावर्ट लॉ यूज करने के लिए मजबूर किया, ऐसा बोल दीजिए आप चाहे तो, है ना। उस फिगर को हमने बायर-सावर्ट लॉ यहाँ पे यूज किया। उसके बाद में यूज करने के बाद में हमने जो भी हमको कंडीशंस पूछी थी, व्हाट आर द कंडीशंस दे आर आस्क्ड अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो यहाँ पे हमने उस चीज को प्रूव किया। और टेकिंग द डिफरेंट केसेस वी गॉट दिस 3 डिफरेंट रिलेशन फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड।
सो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो भी हम स्पेशल केसेस यहाँ पे डील करते हैं, उस स्पेशल केसेस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखते हुए हर एक स्पेशल केस को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो तीनों में से कौन सा यूज़ करना है उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस टॉपिक एंड try to solve this all this try to get all this formulae by yourself by constructing the figure and using the Biot-Savart law here. Okay, so in the next lecture we will meet with the help of the another topic.